Hello friends, I am Hemant Agarwal, host and coordinator for today's meeting. This webinar is conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in cooperative housing societies and will benefit both the managing committee as well as the general members as well. I am from Mumbai, so I'll be speaking our typical uh, Mumbai language, which I am sure कि all of you people will be comfortable with. आप सभी फ्रेंड्स जानते हैं कि पिछले 2 और सालों से elections to cooperative housing societies, including all other societies also, are put on hold. One of the reasons being what we typically understand is act of God, means the ongoing corona pandemic, and another one major reason is the cooperative department has amended the MCS Act and relevant rules for elections and are as yet not formed properly and is getting delayed. Officially, all cooperative housing society elections are suspended till end of August 2021 by government order dated 6th April 2021. However, personally, I think that election for cooperative housing societies would be possible only around March 2022. More specifically, due to pending and improvising election rules and due to heavy line of pending society elections. बहुत से सोसाइटियों के elections pending है and there are many still coming up. People are non-stop putting up their requisition applications to the registrar. So due to this heavy line of pending elections, I think personally, it is my personal opinion that the first election should start somewhere around March 2022. Surprisingly, since last approximately 2 years, I have received more than 200 queries about elections and their very, very strong desire to conduct elections during the ongoing corona pandemic, which is evidently a grave, life-threatening problem. Such people disregard or ignore the life-threatening corona pandemic and insist, surprising, but it is that they say कि we have to do major civil repairs, building गिर रही है, building को बनाना है, redevelopment का रुक गया है. Everybody knows how some people have a very very strong desire or say craving to become MC members. Typically, after becoming MC members, it is a typical thought that after becoming MC members, the very first thought is how to do corruption, threaten members, and other whatnot. Actual work of society office records and registers will be kept pending for years together, including recovery procedures on members with outstanding dues. पुराना पड़ा होगा 5-5, 10 साल से उस पर कार्यवाही करने की जगह में वो पेंडिंग पड़ा रहेगा. सोसाइटी के ऑफिस के रिकॉर्ड्स हैं जो लगभग 23 रजिस्टर्स बनाने होते हैं सोसाइटी में, वो सब पुराने पड़े हैं. सिंकिंग फंड, रिपेयर फंड, नॉमिनेशन के, मॉर्गेजेस के, शेयर रजिस्टर, आई रजिस्टर, जे रजिस्टर वगैरह वगैरह, इससे काफी इन्वेस्टमेंट रजिस्टर. गैंगिंग अप ऑन some members during election for their own corrupt reasons becomes evident when known and unknown co-members come together to form a panel of contesting candidates. According to election rule of 2014, सबसे पहला election rule जो बना वो 2014 में इशू हुआ. उसके पहले election rules जो MCS एक्ट और इलेक्शन MCS रूल्स थे उसी के अंदर मौजूद थे, लेकिन 2014 में पहली बार सेपरेट इलेक्शन रूल्स निकाले गए. Hence, every contesting election candidate is entitled to an symbol. जैसे किसी का टॉर्च है, किसी का लाइटर है, किसी का पेन है, ये सिंबल्स है जैसे कि अपने जनरल इलेक्शंस में भी आते हैं वैसे. So as per election rule 22 read with rule 28, such symbol is allotted by returning officer. If some candidates form a group and mutually agree, group means a gang बना लेते हैं, to take a common symbol, then it is
सेट टू बी ए पैनल। जैसे मानो अगर आपके सोसाइटी में 19 मेंबर का मैनेजिंग कमेटी बनती है, या 11 की बनती है, 15, 13 की बनती है, 15 की, 17 की, और काफी लोग एक साथ मिलकर ये बोलते हैं कि हम लोग एक सिंगल इलेक्शन सिंबल के नीचे लड़ेंगे। तो ये जब एक कॉमन सिंबल लगा देते, सभी ने अगर सोचा कि हम लोग टॉर्च लेते हैं, तो अगर सभी लोगों ने टॉर्च लिया तो ये एक कॉमन सिंबल होता है, और उस कॉमन सिंबल के अंडर में जो भी लड़ते हैं उसे एक पैनल कहा जाता है। इसमें कोई इलीगलिटी नहीं है, इट इज परफेक्टली लीगल। लेकिन इसका दुष्परिणाम क्या है? व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज, बैड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस पैनल ऑफ कैंडिडेट्स canvass, shout or advertise themselves on the basis of this common symbol and plead, or let us say beg, or let us say demand for votes for this common symbol. Common symbol serves to prejudice or say confuse or trick the general body members. बेवकूफ बनाने का काम है, उल्लू बनाने का काम है कि भाई ये एक सिंबल है, आप इसी पे ठप्पा लगाना, मैं कैसा हूं वो मत देखना, ये मेरा सिंबल है, हम 15 लोगों ने एक कॉमन सिंबल लगा, उसी पे ठप्पा लगाना, बाकी दूसरा सिंबल है उसको छोड़ देना। अब वो आप उसको जानते भी नहीं भी होगे तो आपके मन में ये डाल दिया जाएगा कि ये एक सिंबल पे ठप्पा लगाना है। वो अनिल शर्मा कौन है या हेमंत कौन है या वो कौन है, उसका कोई मतलब नहीं। सो द जनरल मेंबर्स आर ट्रिक्ड इनटू वोटिंग फॉर द कॉमन सिंबल। इस कॉमन सिंबल का जो वोटिंग का पैटर्न है वो रूल 44 से 48 के बीच में दिया, इलेक्शन रूल 44 से 48 के बीच में दिया। So what you do is and then the general members, they get tricked into voting for those people who are unknown. जैसे we know कि we have to vote for अनिल शर्मा, तो भाई अनिल शर्मा की जगह में वोट करने के हम उसको सिंबल को वोट करते, वो कौन है क्या है, we do not know. So we do not know whether that person is a genuine person, कुछ काम करने वाला भी है, अच्छा आदमी है, गुंडा आदमी है, क्या है, हमें कुछ पता नहीं। पहले का दादागिरी कर चुका है, परेशान कर चुका है, कुछ पता नहीं है। This ganging up of group members via this common symbol gives practically no or very little or no choice to honest individuals or prudent contesting candidates. Various case histories show that case histories का मतलब जैसे कोऑपरेटिव कोर्ट में इलेक्शन के डिस्प्यूट चले जाते हैं, डिप्यूटी रजिस्ट्रार के पास में इलेक्शन शुरू होने के पहले के जो डिस्प्यूट चले जाते हैं। देयर आर एग्जांपल्स इन सो मेनी। जैसे हम बॉम्बे में रहते हैं तो बॉम्बे में तो हजारों सोसाइटी है, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ एग्जांपल्स आते रहते हैं। सो वेरियस केस हिस्ट्री शो दैट सच पैनल ग्रुप्स यूजुअली स्टार्ट ब्रेकिंग अप within 6 odd months. The reason being that such panel group was formed for with corrupted thoughts, and there is hardly any ईमानदारी or truthfulness or honesty in this common symbol के group जो panel बनाया जिसने। This factor is very much evident from the fact that government or administrator is appointed very soon for such societies at the cost of other innocent members. आपने तो उस कॉमन सिंबल वाले को वोट कर दिया ये सोच के कि वो काम करेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। वो कॉमन सिंबल वाला जो पैनल है उसका मुद्दा कुछ और ही था। 2-4 महीने, 6 महीने, 8 महीने के अंदर ये पता चलता है कि वो कॉमन सिंबल वाला प्रॉब्लमेटिक हो रही है, आपस में लड़ाई झगड़ा हो रही है और एक दो करके छोड़े जा रहे हैं, एलिगेशन वगैरह होते हैं। नाउ एनीवेज, जनरली फॉर प्रिपेयरिंग इलेक्शंस इन हाउसिंग सोसाइटीज, secretary has to make arrangements before 6 months before the tenure or duration of existing MC. MC means managing committee is to end or expire. Example, अगर आपका जुलाई में आपका टर्म खत्म हो रहा है, एमसी का टर्म खत्म हो रहा है, तो आपको एक लिस्ट बना के देना है डिप्यूटी रजिस्ट्रार या असिस्टेंट रजिस्ट्रार को लगभग जनवरी महीने के आसपास। क्या देना है, लेट अस सी। कैसे करना है वो भी मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ। Secretary needs to prepare list of all members that are listed in the society's I and J registers. मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि काफी रजिस्टर्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। इसमें द मोस्ट इम्पोर्टेंट रजिस्टर इन ए सोसाइटी इज द आई रजिस्टर एंड द जे रजिस्टर। आई रजिस्टर में वो चीज है, मेंबर के नाम है, उसका फ्लैट नंबर होगा, उसका शेयर सर्टिफिकेट नंबर होगा, उसका शेयर कैपिटल नंबर होगा, शेयर सर्टिफिकेट नंबर होगा, डिस्टेंट्री नंबर होगा, वगैरह वगैरह। Such names will include first members' names, all the joint members' names, and now the provisional member name. Provisional member का मतलब हो गया नॉमिनी मेंबर। आदमी गुजर गया, उसने नॉमिनी किया हुआ है तो प्रोविजनल मेंबर रिकॉर्ड पे आता है। तो अभी नए कानून में वो प्रोविजनल मेंबर को भी अरेंज कर दिया है कि वो
इलेक्शन लड़ सकता है। ऑल्सो एनी एसोसिएट मेंबर that was duly appointed by the existing and allied primary member, अगर प्राइमरी मेंबर जिसने एसोसिएट मेंबर बनाया है किसी को और वो गुजर जाता है, तो जो एसोसिएट मेंबर बना हुआ है उसका राइट भी अपने आप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। आदमी गुजरा, उसका एसोसिएट मेंबर का राइट अपने आप खत्म। इफ एनी मेंबर्स डू नॉट, इफ एनी नेम्स, एनी मेंबर का नाम आई रजिस्टर में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, या मैनेजिंग कमेटी भूल जाती है या जानबूझ के एंट्री नहीं करती है फॉर एनी रीजन, then such flat owner is not entitled to contest or vote during elections. You may be a flat owner, you may have given your membership transfer documents to the managing committee. मैनेजिंग कमेटी ने किसी कारणवश उसे ट्रांसफर नहीं किया, आपका नाम आया और रजिस्टर में, जे रजिस्टर में नहीं आया, इसका मतलब ये है आप फ्लैट ओनर होने के बावजूद भी, आपके नाम पे मेंटेनेंस बिल आने के बावजूद भी, अगर आपका नाम आई रजिस्टर में नहीं है तो आप कॉन्टेस्ट भी नहीं कर सकते इलेक्शन और वोट भी नहीं कर सकते। दिस लिस्ट ऑफ मेंबर्स शुड बी सॉर्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड नॉट एज पर फ्लैट नंबर वाइज। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब हो गया, मानो अगर आपके 100 फ्लैट है तो 100 फ्लैट में अनिल होगा, सुरेश होगा, वगैरह वगैरह। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब जो फ्लैट ओनर के नाम है वो अल्फाबेटिकली आने पड़ेंगे उसके अंदर। So this list of member should be sorted in alphabetical order and not as per flat number order. This is very important since the returning officer का मतलब है वो जो आप इलेक्शन कराने आएगा उसको रिटर्निंग ऑफिसर is bound to scrutinize the society I and J registers and match it with the alphabetical list of members. Secretary has to prepare a separate list of defaulter members. मतलब ये जो मेंबर्स के सारे लिस्ट बना दिए उससे एक सेपरेट डिफॉल्टर लिस्ट, अगर आपके सोसाइटी में 100 मेंबर है उसके अंदर 20 मेंबर डिफॉल्टर है तो उससे एक सेपरेट लिस्ट बना के देनी है। तो वो क्यों देनी है? क्योंकि डिफॉल्टर मेंबर हैव गॉट नो राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। नेक्स्ट, सेक्रेटरी ऑल्सो हैज टू प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ मेंबर्स हु आर debarred for 5 years from contesting elections due to debar orders issued under section 75, 88 and any other sections. For your information, here debar orders may result from not taking AGM. जैसे अगर मैनेजिंग कमेटी ने AGM टाइम पे नहीं लिया, पुराने समय पे AGM टाइम पे लेने का मतलब ये था कि ऑन और बिफोर 30th सितंबर। अभी सरकार ने वो टाइम बढ़ा दिया हुआ है और आई एम जस्ट टेलिंग ऑन ए रूटीन बेसिस। तो अगर आपने AGM टाइम पे नहीं लिया है तो आप डीबार हो जाते हो। 75 के अंदर 4-5 पैरामीटर्स हैं जो कंप्लाई करना कंपलसरी है, अगर वो नहीं किया तो भी आपको डीबार हो जाते हो। ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट नहीं फाइल किया तो भी आप डीबार हो जाते हो। ऐसे कई चीजें हैं। देयर आर अदर कंपलसरी कंप्लायंसेस अदर अंडर सेक्शन 75। डीबार ऑर्डर also can result due to some misappropriation of funds and recovery orders thereon under section 88। मतलब आप अगर कोई एमसी ने सोसाइटी का फंड्स को मिस अप्रोप्रिएट किया हुआ है, अकाउंट में नहीं बताया हुआ है, बिल वाउचर नहीं है, ब्रिगेड जनरल बॉडी का उस पैसे को खर्चा कर दिया, उसका हिसाब किताब नहीं है, प्रोसेस करने के बाद में सेक्शन 88 के अंदर उस पर रिकवरी ऑर्डर होती है, लायबिलिटी फिक्सिंग ऑर्डर बोलते हैं, जिससे वो पैसा वसूली करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो वो सेक्शन 88 के अंदर भी वो डीबार हो जाता है। अभी एक नया फंडा शुरू किया है कॉपरेटिव डिपार्टमेंट ने, सोसाइटी विद 250 मेंबर्स एंड 250 प्लस मेंबर्स। तो अगर इन केस ऑफ सोसाइटी विद 250 प्लस मेंबर्स, मतलब 251 से लेके अगर ऊपर है, तो सेक्रेटरी हैज टू फाइल प्रॉपर रिक्वेजिशन एप्लीकेशन बाय अटैचिंग फॉर्म नंबर E1, E2, E3 and the alphabetical list of members and file before the ward election authority। इलेक्शन अथॉरिटी कौन है आपके वार्ड का? जो वार्ड का डिप्यूटी रजिस्ट्रार है या वार्ड का असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, उसको इलेक्शन अथॉरिटी का दर्जा दी गया, एडिशनली दर्जा दिया गया। इन अदर वर्ड्स योर डीआर इज योर इलेक्शन अथॉरिटी। जब आपने ये एप्लीकेशन फाइल किया डीआर के पास में, तो 30 दिनों के अंदर इस अथॉरिटी को, मतलब आपका डिप्यूटी रजिस्ट्रार को ऑर्डर निकालना है अपॉइंटिंग ए रिटर्निंग ऑफिसर हु विल ड्यूली कंडक्ट इलेक्शंस इन योर सोसाइटी। टिपिकली इलेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो एक 45 दिन का प्रोसेस होता है। फ्रॉम अबाउट प्रीवियस 18 odd months, there has been highly confusing department circulars and directives and amendments about elections, more specifically about housing societies up to 250 members. Cooperative department up to now
seems to be allowing appointment of internal returning officers from amongst your own society members who does not want to contest elections, which means, as usual, this returning officer should be a neutral person. रिटर्निंग ऑफिसर आप अभी जैसे 100 मेंबर की सोसाइटी, एक मेंबर बुजुर्ग ये कहता है कि मेरे को इलेक्शन नहीं लड़ना है, सोसाइटी उसको प्रॉपरली ड्यू प्रोसेस के साथ में उससे रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट कर सकती है। ऐसा डिपार्टमेंट के नया प्रपोजल आया है और लगभग फाइनलाइज हो गया है। अगर आप किसी कारणवश वो रिटर्निंग ऑफिसर अपने खुद के लोगों में से अपॉइंट नहीं कर पाते हैं, तो जस्ट लाइक द पैनल ऑफ ऑडिटर, आपके सोसाइटी में आपको पता है कि ऑडिट करने के लिए पैनल, ऑडिटर का पैनल है, उसी में से आपको ऑडिटर अपॉइंट करना है और कोई नहीं अपॉइंट कर सकते। तो सिमिलरली लाइक द पैनल ऑफ ऑडिटर्स, अ पैनल ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर्स is also being prepared by the cooperative department, from wherein you means 250 के नीचे के सोसाइटी कैन चूज योर रिटर्निंग ऑफिसर्स। जैसे आपने ऑडिटर पैनल से ऑडिटर को चुना, वैसे यहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर पैनल से चुन सकते हैं आप। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ अदर पैरामीटर्स एंड मॉडलिटीज that needs to be followed for elections in cooperative housing societies. We have invited Advocate Prashant Deshmukh, a highly experienced lawyer in cooperative matters, especially for this webinar to speak on this very important topic, which is elections, new rules, eligibility, how and when to proceed. Now, on behalf of all the participants, I invite today's speaker, Advocate Prashant Deshmukh. प्रशांत देशमुख साहब इज ए मुंबईकर इन सेंस मुंबई में है, मुंबई का देखते हैं, सारा कामकाज करते हैं कोर्ट कचहरी का। ही हैज गॉट ओवर 25 years of experience and deals in all types of civil and cooperative matters along with other matters. He will share his knowledge on various possibilities and legal remedies on today's topic, which is elections, new rules, eligibility, and how and when to proceed further. On behalf of all the participants, we welcome Prashant sir and request him to share his knowledge with all of us in very simple, non-technical language. Over to you, Prashant sir. Thank you on behalf of all the participants. Good evening, friends. This is second time we are meeting on this forum. Now the subject is given to me is election of cooperative housing society. This is also well awaited subject. Election of cooperative housing societies are withheld by the government for more than 2.5 years. I think after 2018, no election were conducted due to various reasons. First, that election of political elections were there. For that purpose, election of cooperative housing societies were withheld. Then after new rules were not framed, that was not passed. Then after this, Corona came. Due to Corona, for last 1.5 years, everyone is sitting home, and this is the reason we cannot conduct election of cooperative housing societies. Now that election are withheld by the government till 31st August 2021. Correct, means for 1 month still we have to wait. From 1st September 2021 we can conduct election. However, we can start process now from today also, because it is a lengthy procedure. It is 60 days procedure. So even election are withheld till 1st September 2021. You can start the process now. Actual election, that means voting, that you can conduct after 1st September. But if you start the process now, then you will able to conduct the election after 1st September. So those societies who are awaiting for conducting election, they can start the process rightly from tomorrow. Now today I will try to explain the process in very simple language, which is helpful for committee member of housing society as well as members also. I will try to speak in both language, English as well as Hindi also, so everyone will able to understand. ये इलेक्शन प्रोसेस जो स्टॉप किया था गवर्नमेंट में, उसके कई रीजन है.
फर्स्ट ऑफ ऑल 97 अमेंडमेंट जो 2013 को 97 अमेंडमेंट हुआ था, उससे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में बहुत बदलाव आ गए. उसके बाद इन 2014 एक्ट वेर अमेंडेड बाय स्टेट एक्ट वेर अमेंडेड. दैट 97 amendment was done by the central government, and due to that all states have amended their state laws, including our cooperative act. So in 2014 new bylaws were introduced. Still we are following that bylaws, but now there are so many changes. Even 154 section 154b, that is special chapter for housing societies, were introduced. So for that chapter, it is very necessary to amend bylaws. Now government are likely to amend the bylaws maybe in 2021 or 22, because it is required, it is need of amended provisions, because many bylaws they are outdated. Today we will discuss about election. Now earlier there were 4 types of societies, A, B, C, D. ए सोसाइटी में नॉर्मली महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट बैंक ये इंक्लूड होते थे. बी टाइप सोसाइटी में कोऑपरेटिव अर्बन बैंक्स एंड डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन, बी टाइप सोसाइटी में. ए और बी में हाउसिंग सोसाइटी इंक्लूड नहीं होती. देन थर्ड टाइप सी टाइप सोसाइटी. सी टाइप सोसाइटी में हाउसिंग सोसाइटीज विच आर हैविंग 200 और मोर मेंबर. This I am talking about earlier provision. Housing societies having 200 and more members, that were classified in C type societies, and in D type societies, housing societies which are having less than 200 members. अब amendment आने के बाद new type, that is E type societies are introduced. अब C type societies में क्या हो गया? C type society में जो 200 और मोर मेंबर थे उनका लिमिट बढ़ा के 250 कर दिया. एंड डी टाइप सोसाइटी में जो 200 एंड लेस मेंबर थे वो इंस्टेड ऑफ 200 एंड लेस 250 एंड लेस मेंबर्स की सोसाइटी जो है उनको ई टाइप में डाला. नाउ टुडे वी आर टॉकिंग दिस सी टाइप सोसाइटी, दैट इलेक्शन इज बीइंग कंडक्टेड बाय स्टेट cooperative election authority. Now E-type society, that means members, society is having 250 members or less members. ये सोसाइटी का इलेक्शन प्रोसीजर अब सोसाइटी खुद कर सकती है, लेकिन दैट इज अंडर सुपरवाइजन एंड कंट्रोल ऑफ डेप्यूटी रजिस्ट्रार. अब उसकी प्रोसेस क्या है ये हम आज डिस्कस करेंगे. अब ये अमेंडमेंट, अर्लियर देयर वाज अ स्पेशल लॉ that was introduced in 2014. That law, it is amended on 7 April 2021. वो जो इलेक्शन लॉ है उसका नाम है द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज इनटू ब्रैकेट इलेक्शन टू कमिटी रूल 2014. अब ये चेंजेस आने के बाद ई टाइप सोसाइटीज न्यू टाइप इंट्रोड्यूस किया और इंस्टेड ऑफ 200 250 मेंबर्स होने के बाद इस रूल में अमेंडमेंट करना बहुत जरूरी लगा और यही अमेंडमेंट बहुत अवेटेड थी और अप्रैल 2021 में फाइनली ये अमेंडमेंट अप्रूव हो गई. अब ये अमेंडमेंट क्या है इसके बारे में आज हम डिस्कस कर देते हैं. ये इसमें इलेक्शन की प्रोसेस क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैनेजिंग कमेटी की टर्म खत्म होनी है, बिफोर 60 days बिफोर एंडिंग द टर्म ऑफ द मैनेजिंग कमेटी, दैट मैनेजिंग कमेटी हैज टू गिव प्रोविजनल लिस्ट ऑफ मेंबर्स वोटर्स टू द डेप्यूटी रजिस्ट्रार एंड इन्फॉर्म that our term of the managing committee is going to expire on so and so date. ये होने के बाद जो ये लिस्ट कैसी बनी जाती है, लिस्ट ऑफ मेंबर, प्रोविजनल लिस्ट, जो आई फॉर्म, हर सोसाइटी में आई रजिस्टर
एंड जे रजिस्टर होता है। आई रजिस्टर में हर एक मेंबर के डिटेल होते हैं, ट्रांसफर की एंट्रीज होती है, और जे रजिस्टर इज लिस्ट ऑफ मेंबर। तो लिस्ट ऑफ मेंबर में मेंबर्स नेम इज फ्लैट नंबर एंड व्हाट इज टाइप ऑफ मेंबरशिप। टाइप ऑफ मेंबरशिप मीन्स इफ इज ओरिजिनल मेंबर इट इज कॉल्ड एज ऑर्डिनरी मेंबर। ओरिजिनल मेंबर है या प्रोविजनल मेंबर है या एसोसिएट मेंबर है, ये लिखा जाता है जे फॉर्म में। तो जो लिस्ट है आई और जे फॉर्म देख के ये लिस्ट बनाई जाती है और वो डेप्यूटी रजिस्ट्रार को बिफोर 60 डेज मैनेजिंग कमिटी सबमिट करना है। अब ये जो इलेक्शन सोसाइटी खुद कंडक्ट कर सकती है, इसका मतलब ऐसा नहीं जो सेक्रेटरी या चेयरमैन सोसाइटी के इलेक्शन कंडक्ट करे, नहीं। द कमिटी हैज टू अपॉइंट अ रिटर्निंग ऑफिसर। अब रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट करना है तो कैसे अपॉइंट करना है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, उसकी टर्म्स क्या होगी, कंडीशन क्या होगी। अब रिटर्निंग ऑफिसर ये जो होते हैं वो उसकी कुछ क्राइटेरिया है। अ पर्सन who is from existing managing committee member, he cannot be a returning officer। जो कमिटी है इलेक्शन एग्जिस्टिंग कमिटी है उसके मेंबर नहीं होने चाहिए। सेकंड, ये सोसाइटी के जो एम्प्लॉइज होते हैं मैनेजर लाइक ए सोसाइटी मैनेजर, सो ही कैन नॉट बिकम अ रिटर्निंग ऑफिसर। थर्ड वन, ऑडिटर ऑफ द सोसाइटी, ऑडिटर ऑफ दैट सोसाइटी कैन नॉट बिकम अ रिटर्निंग ऑफिसर। Then who can become a returning officer? Any member. He should be a member of the society, but he is not willing to contest the election. This election, he can become a returning officer. Second criteria, there is a panel prepared by the divisional joint registrar of advocates and certified auditor. So the managing committee can select रिटर्निंग ऑफिसर फ्रॉम दैट पैनल, दे आर वेल ट्रेन्ड। अब ये दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन से रिटर्निंग ऑफिसर मैनेजिंग कमिटी अपॉइंट करेगी। अब आप बोलेंगे कि हाउ कैन मेंबर बिकम अ रिटर्निंग ऑफिसर, बिकॉज ही इज अ लेमैन, ही इज नॉट हैविंग नॉलेज। तो इसमें ऐसे प्रावधान है कि आपको रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट करने के बाद, सर्टन मेंबर को रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट करने के बाद, यू हैव टू इन्फॉर्म द डेप्यूटी रजिस्ट्रार एंड दैट पर्सन, दैट मेंबर, दैट अपॉइंटेड रिटर्निंग ऑफिसर हैज टू अंडरगो ट्रेनिंग which will be conducted by district housing federation or any other agencies approved by the state। ये उनको, ये मेंबर को ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद ही he can function as a returning officer। अब उसके वो ट्रेनिंग के लिए सर्टन फीस चार्ज करेंगे ऑफ कोर्स डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन एंड ऑल दैट, एंड दे विल इश्यू सर्टिफिकेट दैट दिस पर्सन हैज कंडक्टेड he has taken a training। अब ये रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट होने के बाद जो भी प्रोसेस है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिटर्निंग ऑफिसर की है। मैनेजिंग कमेटी उसके बाद कुछ भी नहीं करेगी। रिटर्निंग, एक तो प्रोविजनल उन्होंने लिस्ट सबमिट की है बस, दैट इज द लास्ट, देन दैट बॉल गोज टू द रिटर्निंग इन द कोर्ट ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर। अब रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा? रिटर्निंग ऑफिसर ये जो प्रोविजनल लिस्ट है वो पब्लिश करेगा। ही विल डिस्प्ले दैट प्रोविजनल लिस्ट इन द नोटिस बोर्ड, ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द सोसाइटी। ये नोटिस प्रोविजनल लिस्ट पब्लिश होने के बाद विथिन 10 डेज मेंबर, अगर कहीं मेंबर को कुछ ऑब्जेक्शन है प्रोविजनल लिस्ट में, अगर उनका नाम नहीं है, अगर नाम गलत है या कुछ भी ऑब्जेक्शन है, then he has to write to the returning officer stating his whatever the objections। ये रिटर्न ऑब्जेक्शन आने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर मेक प्रॉपर इंक्वायरी वेदर ऑब्जेक्शन टेकन इज करेक्ट और नॉट। अब इसमें क्या है, ऑब्जेक्शन खुद के नाम पे ही होना चाहिए ऐसा नहीं। सपोज ए मेंबर है और ए और बी का नाम है,
ए को लगा कि ये बी का नाम गलत है, ही शुड नॉट बी अलाउड टू कॉन्टेस्ट और ही शुड नॉट बी इन वोटर लिस्ट ड्यू टू सम रीजन, तो ए बी के बारे में भी ऑब्जेक्शन ले सकते हैं. एनी मेंबर कैन टेक ऑब्जेक्शन अबाउट द एंटायर लिस्ट. अब ऑब्जेक्शन क्या होता है, उसमें क्या होता है, ये वोटिंग राइट्स किसको मिलते हैं और किसको नहीं मिलते. ऑल मेंबर दोज आर ओरिजिनल मेंबर्स, दे आर हैविंग वोटिंग राइट्स. अगर ओरिजिनल मेंबर, इफ ही इज relinquish his right of voting and contesting election in favor of associate member, for that he has to fill up form number 10A. In that case, instead of original member, associate member can get a voting right और वो associate member का नाम वो लिस्ट में आ जाएगा इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल मेंबर. जो डिफॉल्टर है सोसाइटी का, उनको कुछ वोटिंग राइट नहीं मिलता है. तो डिफॉल्टर है वो निकाल के उसका लिस्ट सेकंड है डिफॉल्टर है. अब ये डिफॉल्टर में क्या होता है, डिफॉल्टर में बहुत डिस्प्यूट हो जाता है. अकॉर्डिंग टू सोसाइटी वन मेंबर इज डिफॉल्टर, but according to that member he is not a defaulter when such case will arise. Suppose that any member is paying maintenance regularly, लेकिन कुछ ड्यूज ऐसा है, he is having objection to that dues and he is not paying. Like as non-occupancy charges, society cannot charge more than 10% of service charges as a non-occupancy charges, but society charging over and above that, then and member is having objection, so he will not pay that over and about 10%, whatever illegal non-occupancy are. But according to society, अरे इनका इतना बैलेंस है, so they will put him in defaulter list. So O member, he will claim that I am not a defaulter. Society is charging me illegally. That is the reason my outstanding is 15,000, 20,000. But I am paying my maintenance, valid charges regularly. So, and according to me, I am not a defaulter. So this will be a question of dispute. In that case, returning officer has to take a proper decision according to law. थर्ड क्राइटेरिया जो है ये वोटिंग, who is not eligible to contest election or even voting right. Any member who is convicted in the inquiry under section 88, 79 and 85, जो मैनेजिंग कमिटी मेंबर्स है या एक्स मैनेजिंग कमिटी मेंबर, उनके अगेंस्ट इंक्वायरी होती है, अगर उसमें अगर डिबार करते हैं, रजिस्टर हैविंग पावर टू डिबार दैट पर्सन टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन फॉर फर्दर 6 years, तो ऐसे कोई है मेंबर्स, देन उनका नाम वोटिंग लिस्ट में आएगा नहीं, प्रोविजनल लिस्ट में आएगा नहीं, फाइनल लिस्ट में भी आएगा नहीं उनका नाम. तो ये एक फर्स्ट स्टेज है जहां डिस्प्यूट बहुत होता है कि प्रोविजनल लिस्ट में नाम है, और उसके बाद ये ऑब्जेक्शन आने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ये जो है ना, वो प्रॉपर आदमी होना चाहिए. ही शुड बी अ वेरी ट्रांसपेरेंट पर्सन. ही शुड नॉट फेवर एनी पर्सन, एनी पर्टिकुलर पर्सन और मैनेजिंग कमिटी. जो भी है जुडिशियली डिसाइड होना चाहिए जो डिस्प्यूट रिटर्निंग ऑफिसर के सामने आता है. रिटर्निंग ऑफिसर का कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं होता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. इट इज नॉट नेसेसरी दैट ही शुड बी अ लॉ ग्रेजुएट और ही शुड बी अ ग्रेजुएट. लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर, जब सोसाइटी मेंबर कोई मेंबर को रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट करते हैं, तब सोसाइटी हैज टू टेक केयर दैट ही इज कैपेबल फॉर दिस पोस्ट, ही कैन हैंडल इट. अगर लॉ में कहीं भी नहीं लिखा है क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्राइटेरिया, लेकिन मैनेजिंग कमेटी ये सोच के ही कोई मेंबर को रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट करना चाहिए. अदरवाइज मैनेजिंग कमेटी कैन अपॉइंट रिटर्निंग ऑफिसर फ्रॉम पैनल ऑफ डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार. दे आर वेल ट्रेन्ड एंड वेल क्वालिफाइड. तो ये क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर को बार बार ये डिस्प्यूट आते हैं, ये फर्स्ट डिस्प्यूट चालू हो गया लिस्ट ऑफ मेंबर्स से, ये इलेक्शन कंडक्ट होने तक, वोटिंग होने तक, रिजल्ट आने तक बहुत सारे ये डिस्प्यूट खड़े हो जाते हैं. कभी कभी ये डिस्प्यूट कोर्ट तक जाते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर ब्लेम हो जाता है, रिटर्निंग ऑफिसर को कोर्ट में जाना पड़ता है. सो ही हैज टू एक्ट वेरी न्यूट्रली एंड जुडिशियली. अब ये रिटर्निंग ऑफिसर जो है
वो लिस्ट पब्लिश करेंगे, फाइनल लिस्ट पब्लिश करेंगे. उसके बाद ही विल पब्लिश अ प्रोग्राम ऑफ इलेक्शन. एक शेड्यूल रहेगा, वो प्रोग्राम का टेबल रहेगा, कितने दिन के बाद क्या, हर का डेट रहेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ही रहेगा डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन प्रोग्राम, डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन प्रोग्राम. डेट ऑफ फाइनल रहेगा, उसमें डेट ऑफ इलेक्शन एंड डेट ऑफ काउंटिंग. नॉर्मली डेट ऑफ इलेक्शन के सेम डे में आफ्टर वोटिंग डेट काउंटिंग होता है नॉर्मली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी. अब ये इंटायर प्रोसीजर होता है इलेक्शन का. इट इज समवॉट सिमिलर टू जे अपने पॉलिटिकल इलेक्शन होते हैं, बीएमसी इलेक्शन या समझो पार्लियामेंट या राज्यसभा स्टेट इलेक्शन रहते हैं. सिमिलर समवॉट सिमिलर प्रोसेस रहते हैं इसमें. तो ये नॉमिनेशन जो लिस्ट पब्लिश करेंगे, फाइनल लिस्ट हो जाएगी. आफ्टर स्क्रूटिनी इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर विल पब्लिश अ फाइनल लिस्ट. ये फाइनल लिस्ट में से जिनको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, दे विल फाइल अ नॉमिनेशन फॉर्म एंड दे विल सबमिट टू द रिटर्निंग ऑफिसर. ये नॉमिनेशन फॉर्म में क्या होगा, नॉमिनेशन फॉर्म इसमें हर कैंडिडेट का एक प्रपोजर और एक सेकेंडर, इनका नाम और सिग्नेचर जरूरी होता है. ये प्रपोजर और सेकेंडर कौन होते हैं, proposer he should be from that list, final list. His name should be in final list. कोई आउटसाइडर या जिनका नाम नहीं है फाइनल लिस्ट में, he cannot, that such person cannot be a proposer or seconder. Then proposer or seconder can be a person who is contesting election. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है. तो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, सेम पर्सन कैन प्रपोज अदर कैंडिडेट और सेकंड अदर कैंडिडेट. ये जो प्रपोजर और सेकंडर है, उनका भी सीरियल नंबर जे फॉर्म में या लिस्ट में जो नंबर है वो नंबर मेंशन करना जरूरी होता है. उसके बाद मैनेजिंग कमेटी है. मैनेजिंग कमेटी के कितने सीट्स रहते हैं, अप टू 100 मेंबर्स. देर आर 11 मैनेजिंग कमेटी मेंबर. इतने पोस्ट होते हैं अप टू 100. सोसाइटी इज हैविंग up to 100 members. 11 101 to 200 13 posts. 201 to 300 15 posts. 301 to 500 17 posts and 501 and above 19 posts. ये टोटल मैनेजिंग कमेटी के पोस्ट होते हैं. आउट ऑफ दैट सर्टन पोस्ट वी हैव टू कीप रिजर्व. कितने रिजर्व रखने हैं, 5. उसका ब्रेकअप क्या है, 2 पोस्ट फॉर वुमन कैंडिडेट, 1 पोस्ट फॉर SC एंड ST, 1 पोस्ट फॉर OBC एंड 1 पोस्ट फॉर BJ एंड NT. तो ये टोटल 5 रिजर्व रखने पड़ते हैं. अब ये 5 रिजर्व, अगर 5 के कोई रिजर्व कैंडिडेट नहीं है तो यू कैन नॉट कॉम्पनसेट विद दिस जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट यहाँ इसमें नहीं एकोमोडेट कर सकती. अगर आपको नहीं मिलते हैं यू कैन कीप इट वैकेंट, बट उसमें आप जनरल कैटेगरी के कोई भी कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता. लेकिन रिजर्व कैटेगरी के कोई कैंडिडेट्स है, मतलब SC ST OBC BJ और NT, अगर उनको लगा कि नहीं वी विल नॉट कॉन्टेस्ट इन रिजर्व कैटेगरी, वी विल कॉन्टेस्ट इन ओपन कैटेगरी, so it is allowed, they can contest in open category also. तो ये रिजर्व होने के बाद अब इसमें क्या है, सपोज दैट 11 we will take a minimum 11 पोस्ट आर देयर. अगर नॉमिनेशन आते हैं, 11 नॉमिनेशन आते हैं या 11 से एक्सीड होते हैं तो एक्चुअल वोटिंग होगा. अगर 11 यानी जितने पोस्ट है उतने ही नॉमिनेशन आते हैं या उससे कम होते हैं तो एक्चुअल वोटिंग नहीं होगा. वेयर एज सेकंड, सपोज दैट वुमन कैंडिडेट, 2 रिजर्व वुमन के और वुमन के 2 ही नॉमिनेशन आते हैं तो वुमन कैटेगरी में वोटिंग करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2 पोस्ट है और नॉमिनेशन भी 2 आई है. 2 के बदले अगर 3 आते हैं तो उनमें भी वोटिंग हो जाएगा. लाइक एज SC
ST, OBC, अदर कैटेगरी में एक एक रिजर्व है, एक से ज्यादा अगर नॉमिनेशन आते हैं तो ही उस पोस्ट के लिए वोटिंग होगा, अदरवाइज उस पोस्ट के लिए वोटिंग की जरूरत ही नहीं, दे विल बी डिक्लेयर एज इलेक्टेड। अब ये विल कम बैक कि ये जो नॉमिनेशन आते हैं, नॉमिनेशन रिटर्निंग ऑफिसर हैज टू स्क्रूटिनी, मेक अ प्रॉपर स्क्रूटिनी ऑफ सच नॉमिनेशन कि ये प्रॉपर सब फिलअप किया है या नहीं, नॉमिनेशन में कुछ मिस्टेक तो नहीं है। नॉमिनेशन में जो अगर रिजर्व कैटेगरी में नॉमिनेशन फिलअप किया है तो दैट पर्सन हैज टू अटैच सर्टिफिकेट, वैलिड सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द नॉमिनेशन। अगर उस नॉमिनेशन में कुछ माइनर मिस्टेक है, जैसे कि नाम स्पेलिंग मिस्टेक है, नाम की स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उस रीजन से इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर और नॉमिनेशन इनवैलिड नहीं कर सकता है। माइनर मिस्टेक है विच इज टेक्निकल मिस्टेक एंड दैट नॉट, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक बोल सकते, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इसके लिए वो इनवैलिड नहीं कर सकते हैं। अब दूसरा एक ये रहता है, क्राइटेरिया है हु कैन नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शन। एक अमेंड हुआ था एक्ट, उसमें एक कैटेगरी है 2001 में कि अ पर्सन, अ मेंबर हु इज हैविंग 2 चिल्ड्रन और मोर, ही कैन नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शन। अब ये उसका डेट, कट ऑफ डेट क्या है? 7 सितंबर 2001, 7 सितंबर 2001 या उसके बाद किसी भी मेंबर को 2 बच्चे हैं या उससे ज्यादा बच्चे हैं, देन such person cannot contest मैनेजिंग कमेटी इलेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब इसमें एक बात यह है, सपोज एक बच्चा हो गया, उसके बाद सेकंड बच्चा है और ट्विन हो गया, तो 3 बच्चे हो गए। बट वो सेकंड डिलीवरी में जो ट्विन हुआ है, दैट दिस पर्सन दैट इट विल बी काउंटेड एट 2, और 3 बच्चे नहीं गिने जाएंगे क्योंकि वो ट्विन हो गए, तो ये एग्जेम्पशन मिलेगा वैसे। और इसकी कट ऑफ डेट है 7 सितंबर 2001। अगर ये डेट के पहले अगर 2 बच्चे हैं, 2 या 2 से ज्यादा बच्चे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 से ज्यादा बच्चे होंगे, नॉट 2 बच्चे, 2 से ज्यादा अगर बच्चे हैं और 2 चिल्ड्रन इट इज अलाउड, तो 7 सितंबर के पहले अगर ये है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। तो इसमें भी बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं कि ये हैव टू गिव डिक्लेरेशन कि ऐसे ऐसे है, मुझे 2 से ज्यादा बच्चे नहीं है, यस पर वट एवर दैट पर्टिकुलर सेक्शन वो मेंशन होता है इसमें। तो उसके बाद ये जो रिटर्निंग ऑफिसर है स्क्रूटिनी करेंगे, और स्क्रूटिनी करने के बाद फाइनल लिस्ट जो है, तो जितने भी नॉमिनेशन आते हैं एवरी डे, सपोज दैट एक 5-6 दिन दिया है नॉमिनेशन फॉर्म करने के लिए, एवरी डे ही हैज टू पब्लिश कि आज ये मेंबर्स के नॉमिनेशन आए, कल जो नए आते हैं उनकी लिस्ट है। हर रोज जितने भी दिन दिए हैं नॉमिनेशन फिलअप करने के लिए, एवरी डे दैट रिटर्निंग ऑफिसर हैज टू पब्लिश लिस्ट ऑफ दैट पर्सन हु हैज फाइल्ड द नॉमिनेशन। उसके बाद उस नॉमिनेशन जो लिस्ट फाइनल होने के बाद कुछ ऑब्जेक्शन है, किसी को ऑब्जेक्शन है, देन दे कैन रेज ऑब्जेक्शन, एनी पर्सन कैन रेज ऑब्जेक्शन कि ये नॉमिनेशन है उसमें मेरा ऑब्जेक्शन है। ये ऑब्जेक्शन की सर्टन डेज खत्म होने के बाद फिर फाइनल लिस्ट पब्लिश हो जाएगी, फाइनल लिस्ट ऑफ नॉमिनेशन। उसके बाद कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता। फिर ये जिन्होंने नॉमिनेशन दिए हैं बिफोर पब्लिशिंग द फाइनल लिस्ट, जिन्होंने नॉमिनेशन दिए हैं और उनको लगा नहीं आई वांट टू विड्रॉ द नॉमिनेशन, वो नॉमिनेशन विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन एक बार नॉमिनेशन विड्रॉ करने के बाद अगेन वो नहीं फिलअप, नहीं आई वांट टू कैंसिल माय डिसीजन, आई एम नॉट गोइंग टू विड्रॉ, ही कैन नॉट डू लाइक दैट। तो एक बार विड्रॉ किया, देन विड्रॉ, उसके बाद फिर इलेक्शन का डेट आ जाए।
अब इलेक्शन की तैयारी रिटर्निंग ऑफिसर को कैसी करनी है? 11 पोस्ट है, समझो 20 नॉमिनेशन आ गए हैं, तो हर एक को सिंबल देना है। अब सिंबल क्या चाहिए, कौन सा सिंबल दे सकते हैं? सिंबल दे सकते हैं एज पर चॉइस ऑफ द कैंडिडेट, पर उसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल जो है, जैसे कि कमल है, धनुष्य बाण है, पंजा है, कोई मांगेंगे नहीं आई एम सपोर्टर ऑफ कांग्रेस, आई एम सपोर्टर ऑफ बीजेपी, सो आई वांट कमल, आई वांट पंजा। नो, इट इज नॉट अलाउड। नॉर्मली कोई देवी देवता के फोटो वो भी अलाउ नहीं करते। उनके बाद लिस्ट है कि कौन से सिंबल है, ये सिंबल जो ऑथराइज सिंबल है वही सिंबल दे सकते हैं। अब इसमें कभी कभी ऐसा हो जाता है, बहुत सारी सोसाइटी, बड़ी सोसाइटी है, तो उसमें क्या होता है, कोई ग्रुप बनाते हैं कि नहीं ये जो एग्जिस्टिंग मैनेजिंग कमेटी है इनको हम निकालेंगे और हम एक ग्रुप बनाएंगे, मतलब पैनल बनाएंगे। वो पैनल जॉइंटली और टुगेदर वो फाइट करते हैं राइवल जो ग्रुप है, राइवल ग्रुप से हम जॉइंटली ये करेंगे और जो वो कन्वर्सिंग भी करेंगे। ऐसे ये पैनल है और इनको ही वोट देना है, ऐसे कन्वर्सिंग करते हैं। तो अगर वैसे कोई जो नॉमिनेशन फिलअप किए जो कैंडिडेट्स है, अगर 30% ऑफ कैंडिडेट इफ दे फॉर्म सच पैनल एंड दे आस्क फॉर कॉमन सिंबल, देन रिटर्निंग ऑफिसर मे गिव कॉमन सिंबल टू दैट पैनल। ये सबका भाई, ये मेरा 11 आदमी का पैनल है हमारा, तो इनको ये एक ही सिंबल दे दीजिए। डिमांड करते हैं, जब पैनल होते हैं तो नॉर्मली लोग कॉमन सिंबल ही मांगते हैं, तो रिटर्निंग ऑफिसर कैन अलॉट देम अ कॉमन सिंबल। अब जो इलेक्शन का डे आ जाता है, इलेक्शन का, उसमें उसके पहले एक बात है कि सपोज ये फाइनल लिस्ट पब्लिश करने के पहले अगर किसी को लगा कि नहीं मेरे बदले मैं ये एसोसिएट मेंबर है या कोई है उनको मैं वोटिंग राइट देता हूँ, बट ही हैज टू गिव दैट परमिशन, ही हैज टू इंटीमेट बिफोर पब्लिशिंग दैट फाइनल लिस्ट, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे क्या है। अब इसके बाद इलेक्शन के टाइम क्या करना है, इलेक्शन के टाइम क्या प्रिकॉशन लेना है। ये सीक्रेट वोटिंग रहती है, जैसे पॉलिटिकल वोटिंग रहती है, सीक्रेट वोटिंग रहती है, तो उसमें कोई भी कौन किसको वोट देता है देख नहीं सकता। अब रिटर्निंग ऑफिसर बैलेट पेपर रहेगा, बैलेट बॉक्स रहेगा, बैलेट बॉक्स जब वोटिंग प्रोसेस चालू होने के पहले अब वो रिटर्निंग ऑफिसर बैलेट बॉक्स ओपन करेंगे और दिखाएंगे सबको, देखिए ये एम्प्टी बैलेट बॉक्स है। उसके बाद सब कैंडिडेट के सामने ही उनको लॉक करेंगे। हर कैंडिडेट अपना सील, अब इसमें सील तो नहीं रहेगा, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में नॉर्मली पॉलिटिकल पार्टी में सील दिया जाता है, तो अपना सील या सिग्नेचर कर सकते हैं उसके ऊपर, ये लॉक हुआ करके। बाद में अगर कोई ऑब्जेक्शन, सपोज कोई वोटिंग के लिए आ जाता है, अगर कोई किसी कैंडिडेट को लगता है नहीं ये फेक वोटर है, इसका नाम फलाना फलाना है बट ये नहीं है, ये वोटिंग लिस्ट में जो नाम लिखा है वो ये आदमी नहीं है, ही कैन टेक ऑब्जेक्शन। ऐसे अगर ऑब्जेक्शन आ जाएगा तो इलेक्शन ऑफिसर विल स्क्रूटिनी भाई ऑब्जेक्शन वैलिड है या नहीं, एंड ही विल टेक अ डिसीजन कि उनको वोटिंग करने देना है या नहीं। इस चीज में बहुत झगड़े होते हैं कि इंस्टेंटली हैज टू टेक डिसीजन, तो ये स्किल होता है इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर का। देन कभी कभी ऐसी नौबत आ जाती है कि एक मेंबर आ गया, उसने वोटिंग किया, वोटिंग करके चला गया, दूसरी बात दूसरा मेंबर आ जाएगा और बोलेगा अरे मैं तो ये मिस्टर डिसोजा ने वोटिंग किया है, वो देखें यू मिस्टर डिसोजा यू ऑलरेडी वोटेड, वो बोलेंगे नहीं अरे मैं मिस्टर डिसोजा है, मैंने तो वोट किया नहीं, मैं अभी आया। तब ये डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है। तब रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा, देयर इज अ प्रोविजन that such person will be allowed to vote the second person, but that will be considered as tender vote. वो टेंडर वोट
बैलेट बॉक्स में नहीं डाला जाएगा। वो टेंडर वोट रिटर्निंग ऑफिसर सेपरेट रखेगा एनवेलप में। ऐसे जितने भी टेंडर वोट आएंगे, नॉर्मली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में ऐसे बहुत कम होता है क्योंकि सब एक दूसरे को पहचानते हैं, लेकिन ये प्रोविजन है लॉ में, इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये टेंडर वोट बैलेट बॉक्स में नहीं डाला जाएगा, वो सेपरेट रखेंगे। और उस चीज का फैसला होने के बाद कि ये जो पहले वोटिंग किया है वो प्रॉपर मेंबर है या सेकंड टाइम आ गया वो प्रॉपर मेंबर है, इसका फैसला होने के बाद समझो ऐसा डिसीजन आ गया नहीं सेकंड मेंबर है वो ये है, तो टेंडर वोट जिसको उसने वोट दिया उसको एडिशन को वोट काउंट किया जाएगा। उसमें बहुत बड़ा डिस्प्यूट है ये, क्योंकि वो पहले ने किसको वोट दिया मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके लिए वो सेपरेट रखा जाएगा और फिर वहां एक अलग डिस्प्यूट खड़ा हो जाएगा। मीनवाइल अब इलेक्शन में अगर कुछ ये प्रोसेस में किसी को अगर कोई ऑब्जेक्शन है, रिटर्निंग ऑफिसर के बारे में ऑब्जेक्शन है, ऐसा लगा कि रिटर्निंग ऑफिसर प्रॉपर डिसीजन नहीं ले रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, जैसे लिस्ट है या क्या है, तो दैट मेंबर कैन अप्रोच डेप्यूटी रजिस्ट्रार एंड मेक अ कंप्लेंट एंड डेप्यूटी रजिस्ट्रार हैज टेक इंस्टेंट डिसीजन, क्योंकि ये प्रोसेस तो चालू होता है, इमीडिएटली हैज टू टेक डिसीजन। एक बार इलेक्शन होने के बाद फिर डेप्यूटी रजिस्ट्रार की जुरिडिक्शन नहीं होगा। देन इलेक्शन डिस्प्यूट अगर कुछ होता है देन दैट कंप्लेनेंट हैज टू अप्रोच द कोऑपरेटिव कोर्ट। इलेक्शन होने के बाद हैज टू अप्रोच कोऑपरेटिव कोर्ट, और उसमें बहुत बहुत लेंदी हो जाते हैं। कभी कभी कोऑपरेटिव कोर्ट में कितने इलेक्शन डिस्प्यूट खड़े रहते हैं और कोऑपरेटिव कोर्ट इतना स्लो है कि वो कमेटी की 5 साल खत्म हो जाते हैं तो भी डिसीजन नहीं लगता है। इलेक्शन डिस्प्यूट, बहुत सारे इलेक्शन डिस्प्यूट पेंडिंग है कोऑपरेटिव कोर्ट। तो इस तरह से ये वोटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब काउंटिंग, ये काउंटिंग जो करना है वो कैसे किया जाता है? सबके सामने, सब कैंडिडेट के सामने या जो भी मेंबर है सबके सामने बैलेट बॉक्स ओपन किया जाएगा। उसके बाद एक एक वोट काउंट किए जाएंगे। अगर वो बैलेट पेपर कुछ ऑब्जेक्शन है, कभी कभी क्या होता है बैलेट पेपर पे कहाँ क्रॉस किया है वो प्रॉपर समझ में नहीं आता है, ये कैंडिडेट को क्रॉस किया है या नीचे कोई कैंडिडेट है एडजॉइनिंग उसको क्रॉस किया है, तो डिस्प्यूट होता है। तो वोट इनवैलिड वोट करके गिना जाएगा, वो काउंट नहीं होगा। इट इज सस्पेक्टेड है, डाउटफुल है कि किसको दिया है। सेकंड चीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर मेंबर आप सुन लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप वोटिंग करें एज ए वोटर। सी देयर आर 11 पोस्ट, यू आर वोटिंग फॉर 11 पोस्ट, करेक्ट? नाउ जनरल कैटेगरी के कितने हैं? 6 है। आपको 6 ही वोट करना है जनरल कैटेगरी के। अगर आप 6 के बदले 7 करते हैं आपका बैलेट पेपर इनवैलिड हो जाएगा। वैसे ही वुमन 2 है तो आपको 2 ही वोट करना है, 3 नहीं करना है। 2 के बदले आप 1 वोट करते हैं या 6 के बदले, जनरल कैटेगरी में 6 के बदले आप 5 करते हैं वोटिंग, 4 करते हैं, 3 करते हैं, कम करते हैं, देन नो प्रॉब्लम, दैट विल बी दैट योर बैलेट पेपर इज वैलिड। ऐसी जरूरी नहीं कि 11 पोस्ट है तो आपको सब 11 को ही वोट देना है, बट यू कैन नॉट वोट मोर देन दैट पोस्ट। ये आप बहुत अच्छी तरह याद करने, यही रीजन है कि बैलेट पेपर हमेशा इनवैलिड होता है। आप घाई घाई में गिनती करना भूल जाते हैं और एक कोई क्रॉस एक्स्ट्रा किया जाता है और आपका पूरा बैलेट पेपर इनवैलिड हो जाता है। तो इस तरह से बैलेट पेपर जो है, कितने बैलेट पेपर वैलिड है, कितने बैलेट पेपर इनवैलिड है, सब जो वहां प्रेजेंट है उनको रिटर्निंग ऑफिसर दिखाएगा, सब देखिए ये बैलेट पेपर है, दिस इज वैलिड। वहां काउंटिंग के लिए रहेगा, एक एक वोट गिना जाएगा, ये वोट है मिस्टर सो एंड सो को, ये वोट है मिस्टर सो एंड सो को, वो मार्क किया जाएगा और उसमें कितने वोट मिले, सीधे सब कितने ज्यादा वोट मिले हैं तो वो गिने जाएंगे। सपोज देयर आर 100 मेंबर्स इन सोसाइटी
तो एक मेंबर को कितने मिले, एक मेंबर को सपोज दैट 80 वोट मिले, फिर दूसरे को 75 मिले, तीसरे को 72 मिले, तो ऐसे टोटल हाईएस्ट कितने हैं? अगर जनरल में 6 है तो हाईएस्ट 6 गिने जाएंगे। अब इसमें प्रॉब्लम एक हो जाता है, कभी कभी क्या हो जाता है, टाई हो जाती है। ये टाई कैसी हो जाती है कि इक्वल हो जाते हैं वोट, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो क्या करें, इसमें कास्टिंग वोट का प्रोविजन है। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि कास्टिंग वोट का रहते हैं, कमेटी के चेयरमैन को कास्टिंग वोट का राइट्स रहता है, या आप देखिए राज्यसभा में वगैरह जो भी कास्टिंग वोट है, इसमें रिटर्निंग ऑफिसर को कास्टिंग वोट का नहीं रहेगा। तो उस टाइम क्या करेंगे, उस टाइम और कोई ऑप्शन नहीं है, ड्रॉ निकालना है, लकी ड्रॉ, और वो ड्रॉ निकाल के ही डिसीजन लेना है। दिस इज फाइनल। ऐसी नौबत बहुत कम आती है, लेकिन ऐसे कुछ हुआ। तो ये रिटर्निंग ऑफिसर बहुत स्किलफुल होना बहुत जरूरी है। कभी कोई कंडीशन आए, कभी कोई डिस्प्यूट खड़ा हो जाए, कुछ भी नहीं बता सकते हैं। तो उस टाइम इमीडिएट डिसीजन क्या लेना है, और रिटर्निंग ऑफिसर को सब नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब ये काउंटिंग होने के बाद इमीडिएट इलेक्शन ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर उसका रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। उसके बाद ये वोटिंग खत्म हो गई। उसके बाद अब फॉर्मेशन ऑफ मैनेजिंग कमेटी जो है ऑफिशियली, उसकी एक रिटर्निंग ऑफिसर, या अब तक 4 रिटर्निंग ऑफिसर के पास है। रिटर्निंग ऑफिसर कमिटी मीटिंग, फर्स्ट कमिटी मीटिंग कॉल करेंगे, एंड फॉर दैट ही हैज टू गिव 7 डेज नोटिस टू ऑल द विनिंग कैंडिडेट। और उस मीटिंग में फिर जो विनिंग कैंडिडेट है उनकी कमिटी फॉर्म हो जाएगी, जो भी विनर है उनकी कमिटी हो जाएगी, और उस कमिटी में ऑफिस बेरर का पोस्ट। बहुत जन को ऐसा लगता है कि चेयरमैन जनरल बॉडी में सिलेक्ट होते हैं या सेक्रेटरी जनरल, नहीं। मैनेजिंग कमिटी इज सिलेक्टिंग पोस्ट। मैनेजिंग कमिटी इज हैविंग पावर टू सिलेक्ट सेक्रेटरी, चेयरमैन एज पर लॉ। कमिटी को रहे, तो ये मीटिंग में फिर रिटर्निंग ऑफिसर के सामने ये मीटिंग कंडक्ट हो जाएगी। उसमें पोस्ट डिसाइड होगा, हु विल बी सेक्रेटरी, हु विल बी चेयरमैन। उसके बाद ये जो है इलेक्शन का जो भी बैलेट पेपर और जो भी रिकॉर्ड है, एक बॉक्स में बंद किया जाएगा, और वो सोसाइटी के जो चेयरमैन है, ऑफिस बेयर है, उनके पास दिया जाएगा। और ये जो डॉक्यूमेंट्स है 6 महीने तक सेफ रखने की जरूरत है। 6 महीने के बाद डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पर अगर कुछ इलेक्शन डिस्प्यूट है, अगर कोर्ट में कोई गया है इलेक्शन चैलेंज करने के लिए, तो आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जब तक वो डिस्प्यूट डिसाइड नहीं होता है, तब तक आपको ये रिकॉर्ड रखना। तो ये हो गई इलेक्शन प्रोसेस। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको ये बता दिया। अब आपको इसके बारे में अगर कुछ क्वेरी रहेगी, यू कैन आस्क क्वेरी, एंड ओवर टू हेमंत जी।